آج ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں میرے بچے معراج کا۔ معراج جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ فیوریٹ ٹاپک ہے۔ کس کا فیوریٹ ٹاپک ہے؟ آپ کے ایگزامینر کا۔ اور ہم جو ہے وہ 10 نمبر کے سوال کو ہم اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ 10 نمبر کے سوال میں اسرا کا بھی پوچھ رہا ہے اور وہ معراج کا بھی پوچھ رہا ہے۔ اسرا کا بھی پوچھ رہا ہے اور وہ معراج کا بھی پوچھ رہا ہے۔ سر اس میں سب سے پہلے جو مارکنگ اس کی ہم بنائیں گے اسرا والمعراج کے سوال میں، آؤٹ لائن دا مین ایونٹ آف اسرا والمعراج کے سوال کے اندر ہم جب مارکنگ اسکیم بنائیں گے ہم انٹروڈکشن لکھیں گے۔ اسلامیت میں انٹروڈکشن ویسے نہیں ہوتا، مگر اس میں ہم انٹرو کے پیراگراف میں ہم بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں میرے بچے؟ ہم بیک گراؤنڈ میں پھر اس کے بعد جو ہے بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد ہم مین ایونٹس بتائیں گے۔ مین ایونٹس کے اندر آپ کیا بتائیں گے؟ مین ایونٹس کے اندر دو جرنی ہیں، ایک اسرا ہے۔ اسرا میرے بچے بولتے ہیں آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں تک جانے کو؟ مسجد الاقصی تک جانے کو۔ کہاں تک جانے کو میرے بچے؟ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی تک گئے تھے، اور مسجد اقصی تک جب گئے تھے ہم اس جرنی کو کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ اس جرنی کو بولتے ہیں اسرا۔ اور میرے بچے معراج کس کو بولتے ہیں ہم لوگ؟ معراج بولتے ہیں اللہ کے گھر تک جانے کو، جس میں جو ہے وہ ہیونس جائیں گے۔ ہیونس پہ جانے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے گھر جائیں گے۔ اللہ کے گھر کا نام ہے بیت المعمور۔ کیا نام ہے؟ بیت المعمور۔ اس کے بعد آپ انٹروڈکشن کے بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد، مین ایونٹس بتانے کے بعد جو ہے وہ آپ لاسٹ جو پیراگراف بنا رہے ہوں گے جو P3 ہوگا۔ اسلامیہ میں پیراگرافنگ اتنی زیادہ مینڈیٹری نہیں ہوتی، اتنی زیادہ ضروری نہیں ہوتی۔ آنسر اسٹرکچر بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، آنسر فریم بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، ریلیونٹ ریفرنسز استعمال ہونے چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ آپ نے کیا ہوا ہے تو بہت ہے، اس سے زیادہ آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس P3 کے اندر جو ہے آپ پروفٹ کا ریٹرن بتائیں گے۔ پروفٹ کا ریٹرن بتانے کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ریئیکشنز بتائیں گے۔ کس کا؟ مکلز کا۔ آپ جو ہے وہ ریٹرن بتائیں گے اور پروفٹ کا، اور جو مکنز کا ریئیکشن تھا وہ آپ بتائیں گے، جو مکنز نے کس طریقے سے ریئیکٹ کیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پہ۔ اب آپ نے یہاں تک ساری باتیں سمجھانے کے بعد، آپ یہاں تک ساری چیزیں سمجھانے کے بعد آپ اگلی بات کیا بتائیں گے؟ آپ اگلی بات سمجھائیں گے کہ جب آپ نے یہاں تک بتا دی ہے، یہاں تک سمجھانے کے بعد آپ مین پیراگراف پہ چلے جائیں گے۔ آپ آنسر کو بتانا شروع کر لیں گے بیٹے۔ آپ آنسر کو بتانا شروع کریں گے، ہم آنسر کو لکھنا شروع کریں گے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلی بات جو آپ بتائیں گے بھائی جان، انٹروڈکشن کے اندر جو آپ بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اس سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہارڈ شپس بہت زیادہ تھی۔ وہ ہارڈ شپس اتنی زیادہ تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایئر آف گریف گزرا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ایئر آف گریف گزرنے کے بعد حضرت خدیجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیا چیف کون بن گیا تھا؟ ابو لہب نیا چیف بن گیا تھا۔ ابو لہب جب نیا چیف بن گیا تھا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ طائف جانا پڑ گیا تھا۔ اور طائف کے بھی جو لوگوں کا ریئیکشن تھا وہ بہت زیادہ ورس تھا، ریئیکشن بہت زیادہ مشکل ریئیکشن تھے ان کے۔ اور وہ اتنے زیادہ مشکل ریئیکشن ہونے کی وجہ سے ایٹ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سو ڈپریسڈ۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنے سال گزرے، اتنی ہارڈ شپس گزری ہیں، ان ہارڈ شپس کے اندر بائیکاٹ بھی تھا۔ اب یہ سارا میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، بیک گراؤنڈ نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ڈپریس تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اینزائٹی میں تھے۔ تو میرے بچے جتنی مشکل ہوگی اللہ اتنی ہی آسانیاں کرتا ہے۔ ہر خیر کے بعد آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، ہر پریشانیوں کے بعد آسانیاں ہیں، ہر معاملات کے بعد آسانیاں ہیں، ہر ہر مشکل کے بعد اللہ اس کو جو ہے وہ مشکل کو کشا کر دیتا ہے، سکون کر دیتا ہے۔ اس ڈپریشن میں، اینزائٹی میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کے ایریا میں لیٹے ہوئے ہیں۔ سر حتیم کا ایریا کون سا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کی وڈتھ کو اور خانہ کعبہ کی لینتھ کو چھوٹا کر دیا گیا تھا، تو یہ جو ایریا ہے یہ حتیم کا ایریا تھا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ لے کے گئے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں تو آپ نے یہ ایریا دیکھا ہوگا۔ یہ ایریا، دس ایریا واز ان سائڈ خانہ کعبہ، بٹ خانے انٹرسٹ فری اماؤنٹ یوز ہوئی تھی تو یہ ایریا باہر ہی رہ گیا تھا۔ اور یہ جو ایریا ہے وہ حتیم کا ایریا ہے۔ اس حتیم کے ایریا میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اینجل جبرائیل آتے ہیں۔ پروفٹ کا چیسٹ کٹ ڈاؤن ہوتا ہے، پروفٹ کا چیسٹ کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد میرے بچے دل کو نکال لی جاتا ہے، ہارٹ کو نکال لی جاتا ہے۔ یہ دوبارہ ہو رہا ہے، یہ ایک بار پہلے بھی ہوا تھا جب میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ دوسری بار ہو رہا ہے، اور دوسری بار آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کاٹا جا رہا ہے، مطلب سینہ کاٹا جا رہا ہے، دل نکالا جا رہا ہے، اور زمزم کے پانی سے دھویا جا رہا ہے۔ زمزم کا پانی کس ٹرے میں دھویا جا رہا ہے میرے بچے؟ گولڈن ٹرے میں جو ہے دھویا جا رہا ہے۔
गोल्डन ट्रे में धोने के बाद मेरे बच्चे, गोल्डन ट्रे में धोने के बाद दिल को भर दिया जाता है किस चीज से? विजडम से और बिलीफ से। अब अल्लाह ताला जो है वो इस वाक़े को किस सूरा में बताता है? अल्लाह ताला इस वाक़े को 15वां पारा जो स्टार्ट हो रहा है, 15वां पारा जो स्टार्ट हो रहा है, अल्लाह ताला जो है वो इस पूरे जो वाक़े को बताता है। अल्लाह ताला सूरत जो 15वां पारा है, 15वें पारे की वर्स नंबर 1 जो है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ताला जो है वो सूरत इसरा के अंदर बताता है 17:1 में चल रहा था। 17:1 के अंदर, 17:1 के अंदर अल्लाह ताला बताता है सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ताला फरमाता है ग्लोरी टू हिम हु कैरीड हिज सर्वेंट फ्रॉम द सेक्रेड मॉस टू द फर्दर्स्ट मॉस इन ऑर्डर दैट वी माइट शो हिम सम ऑफ आवर साइंस। सर, सुबहान है वो जो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गया। किधर से लेके गया? सेक्रेड मॉस से लेके गया। सेक्रेड मॉस कौन सी है? सेक्रेड मॉस है खाने काबा। सेक्रेड मॉस से लेके गया, कौन सी मॉस लेके गया? फर्देस्ट मॉस लेके गया। कौन सी मॉस लेके गया? फर्देस्ट मॉस। फर्देस्ट मॉस कौन सी है? फर्देस्ट मॉस है मस्जिद अल अक्सा जेरूसलम। जो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेक्रेड मॉस से लेके गया, सेक्रेड मॉस से बेटा किधर लेके गया? सेक्रेड मॉस से फर्देस्ट मॉस लेके गया। ग्लोरी है उसके ऊपर, सुबहान है वो शख्स, सुबहान है वो शख्सियत, वो अल्लाह की शख्सियत है जो अपने हबीब को, अपने आका को सर सेक्रेड मॉस से लेके गया। कहाँ लेके गया? फर्देस्ट मॉस पे। फर्देस्ट मॉस कौन सी है? फर्देस्ट मॉस इस मस्जिद अल अक्सा। मस्जिद अल अक्सा लेके गया सर, वही सुबहान है, वही लेके जा सकता है। ये इंसान के बस की तो बात बात ही कोई नहीं है कि वो एक शख्स को उठाए, एक शख्स को उठा के वहां लेके चला जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं आए, हम इनको लेकर गए हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं आए, हम इनको लेकर गए हैं, हम इनको खास लेकर गए हैं। ये खुद नहीं आए हैं। अल्लाह कह रहा है कि मैं लेकर गया हूँ, मैं लेकर गया हूँ, मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे दुनिया जहाँ की इंसानियत में सबसे अजीम तरीन हस्ती हैं, तो मेरे बच्चे बैकग्राउंड में मैंने क्या बताया? मैंने हार्डशिप बताई, मैंने बॉयकॉट बताया कि प्रॉफिट के ऊपर ईयर ऑफ ग्रीफ गुजरा था, अबू लहब ने अजीब बन गया था, ताइफ गए थे, उनके रिएक्शन बहुत वर्स थे, प्रॉफिट डिप्रेस्ड हो गए थे, प्रॉफिट एंजाइटी में आ गए थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में लेटे हुए थे। हतीम का एरिया भी मैंने आपको बताया कि ये हतीम का एरिया है, ये खाने काबा के इनसाइड का एरिया था, मगर खाने काबा की विड्थ और लेंथ छोटी होने की वजह से तो ये बाहर चला गया। इंज जिब्राइल जो है वो आए, प्रॉफिट का चेस्ट कट डाउन हुआ, प्रॉफिट का दिल निकाला गया, आब जम के पानी से धोया गया, गोल्डन ट्रे के अंदर धोया गया, और दिल में विजडम और बिलीफ भर दिया गया क्योंकि अल्लाह से मुलाकात होने जा रही है। और इतनी मुश्किलात हुई थी, इतना मामला मुश्किल हुआ था, और अल्लाह जो है वो अब अपने हबीब को अपने दर पे बुला रहा है और वो कह रहा है कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद नहीं आए थे, हम आपको लेने के लिए आए थे, हम आपको लेने के लिए आए थे, हम आपके आशिक हैं, हम आपसे इश्क करते हैं। अगर आपके पास थोड़ी मुश्किलात हुई हैं, आपके साथ थोड़ी मुश्किलात हुई हैं, आपके मामला थोड़े मुश्किल हुए हैं, तो हम जानते हैं कि आपने बड़ा सफ़र किया है, आपने पेट पे पत्थर भी बांधने पड़े, आपको आपको अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजारनी पड़ी, और ये सब हम जानते हैं, हम ये सब जानने जानने हम ये सब जानने पहचानने वाले हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये सारी बातें बताई, एक सेकंड सब्र कीजिएगा बेटा मेरे बच्चे। फिर 17:1 सूरतुल इसरा के बाद, 17:1 के बाद के भाई सेक्रेड मॉस से हम लेके गए, कहाँ लेके गए? फर्दर्स मॉस लेके गए, ताकि हम आपको कुछ साइन दिखा सकें। उसके बाद मेन इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मेन इवेंट स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है कि अब ये आप समझ जाएंगे कि अब क्या स्टार्ट होने वाली है। अब जर्नी स्टार्ट होने वाली, क्या स्टार्ट होने वाली बेटा? अब जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो जर्नी स्टार्ट हो गई है तो भाई कोई ना कोई तरीका तो होगा ना कि जो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में हतीम के एरिया से मस्जिद अल अक्सा जेरूसलम जाएंगे, तो सर एक जानवर लेकर आया जाता है। उस जानवर का नाम था बुर्राक। क्या नाम था बेटे? जानवर का नाम था बुर्राक। सर वो कैसा था? सर वो म्यूल से छोटा था, वो म्यूल से छोटा था और डोंकी से बड़ा था। मेरे बच्चे, वो म्यूल से छोटा था और वो डोंकी से बड़ा था। उस जानवर का नाम था बुर्राक, सफेद कलर का था, पर उस पे लगे हुए थे। सब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब जाते हैं तो वो थोड़ा झड़कता है। जब वो झड़कता है तो जिब्राइल बताते हैं कि ये आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये सबसे अजीम शान हस्ती हैं इस पूरी कायनात की, इस पूरी दुनिया की, ये आप पे सवार होने के लिए जा रहे हैं। और बुर्राक व्हेन ही लिसन दिस,
वो बिल्कुल काम डाउन हो जाता है, और एट लास्ट मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पर बैठते हैं। आज जो जहाज का मामला आ गया है कि आप जो है वो लाखों मील का सफर, हजारों मील मील का सफर आप जो है वो कुछ घंटे के अंदर, कुछ दिनों के अंदर तय कर लेते हैं। वो क्यों, वो आप कैसे तय कर लेते हैं? वो आप ऐसे तय कर लेते हैं कि अल्लाह जो है वो आपको जहाज में लेके जाता है। तो ये बुर्राक जो है, ये ओल्ड टाइम्स के अंदर जो है वो एक जहाज की एक मामला लेकर आया। बुर्राक जो पहली छलांग मारता था वो इतनी बड़ी छलांग थी कि जहां तक आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक जा रही थी, जब वो पहली छलांग मारेगा वो वहां तक मारेगा। फिर वो छलांग मारेगा, फिर वो जब इतनी बड़ी छलांग मारेगा कि जहां तक आपकी आईसाइट जा रही होगी, जहां तक आपको नजर आ रहा होगा, उस बुर्राक के पर थे। एट लास्ट आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माउंट ऑफ तूर दिखाया गया। माउंट ऑफ तूर वो माउंट था जहां पे हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से डायरेक्टली हम कलाम हुआ करते थे, डायरेक्टली कम्युनिकेट किया करते थे। वो जगह दिखाई जाती है जिसका नाम था बैतुल हम, जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। बैतुल हाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ पैदा हुए थे, बैतुल हाम जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी जर्नी में सबसे पहले एक जगह दिखाई गई थी, इसका नाम था मदीना। जिब्राइल कहते हैं कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका शहर बनेगा, आप यहाँ हिजरत करके आएंगे। सर, मदीना, माउंट ऑफ तूर, बैतुल हाम। दोबारा बेटे, मदीना, माउंट ऑफ तूर, बैतुल हाम। दोबारा मेरे बच्चे, मदीना, माउंट ऑफ तूर, बैतुल हाम। दोबारा मेरे बच्चे, रास्ते में बुर्राक पे मदीना दिखाया गया, माउंट ऑफ तूर दिखाया गया, बैतुल हाम दिखाया गया। बैतुल हाम पे ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए हैं। माउंट ऑफ तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्टली कम्युनिकेट किया करते थे। मदीना वो जगह है जहाँ पे आपके पास आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाएंगे? माइग्रेट करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे? माइग्रेट करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे? माइग्रेट करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे? माइग्रेट करके जाएंगे। और ये सारा आपके पास मामला होने के बाद बुर्राक जो है वो पहुंचता है, वो पहुंचता है किधर पहुंचता है? वो मस्जिद अल अक्सा जेरूसलम पहुंच जाता है। किधर पहुंच जाता है? जब वो मस्जिद अल अक्सा जेरूसलम पहुंचता है, सर, मस्जिद अल अक्सा जेरूसलम पहुंचने के बाद आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पोल पे अपनी सवारी को बांधते हैं। वो बड़ा सिग्निफिकेंट पोल था, उसकी बड़ी अहमियत है। पिछले नबी भी अपने जो जानवर थे वो इसी पोल के साथ बांधा करते थे। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ एक टाइटल मिलेगा, टाइटल का नाम है इमामुल अंबिया। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के इमाम बनेंगे। 1,24,000 कमो पेश पैगंबर को नमाज पढ़ाएंगे, और आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नमाज में लीड करेंगे। 1,24,000 मैसेंजर्स को नमाज में लीड करने के बाद आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 कमोपेश पैगंबर को नमाज में लीड करेंगे। नमाज में लीड करने के बाद नमाज कंप्लीट हो गई है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल पूछता है, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे मेहमान हैं, आप दूध लेना पसंद करेंगे वैसे, या वाटर लेना पसंद करेंगे, या आप अल्कोहल लेना पसंद करेंगे? आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूज मिल्क। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूज मिल्क। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चूज किया? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्क चूज किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूज मिल्क। जब मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्क चूज किया, तो जिब्राइल फरमाते हैं, जिब्राइल कहते हैं, यू हैव चूजन द फितरा फॉर योर उम्मा। जिब्राइल क्या कहते हैं? जिब्राइल कहते हैं, यू हैव चूजन द फितरा फॉर योर उम्मा। आपने अपनी उम्मत के लिए एज अ गिफ्ट चूज किया है। यू हैव चूजन द फितरा फॉर योर उम्मा। अगर आप शराब चूज कर लेते तो आपकी उम्मत बड़ी लग्जरीज में पड़ जाती। अगर आप पानी चूज कर लेते तो आपकी उम्मत नीस तो नाबूद हो जाती, तबाह बर्बाद हो जाती, और आपकी उम्मत को एंड कर दी जाता। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, जिब्राइल कह रहे हैं, यू हैव चूजन द फितरा फॉर योर उम्मा। आपने अपनी उम्मत के लिए क्या चूज किया है? आपने अपनी उम्मत के लिए फितरा चूज किया है। आपने अपनी उम्मत के लिए क्या चूज किया है? आपने अपनी उम्मत के लिए फितरा चूज किया है। इसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक की जो जर्नी कर रहे थे वो किस पे थी मेरे बच्चे? बुर्राक पे थी। किस पे थी? बुर्राक पे। अब यहाँ पे इसरा की जर्नी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे इसरा की जर्नी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे इसरा की जर्नी खत्म हो जाएगी। जब बुर्राक पे हैं यहाँ इसरा की जर्नी खत्म हो जाएगी।
اور प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब जर्नी स्टार्ट करेंगे वो महराज की जर्नी होगी। बेटा वो किसकी जर्नी होगी? वो महराज की जर्नी होगी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की जर्नी स्टार्ट करेंगे और इस महराज की जर्नी में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेडर शो कराई जाएगी। ये लेडर किधर जाएगी? ये लेडर जाएगी पहले आसमान पे। किधर जाएगी? पहले आसमान पे। पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे, छठे पे, फिर सातवें पे। अब याद करा दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद दूसरे पे याहया, ईसा, जकरिया, तीसरे पे यूसुफ, चौथे पे इदरीस, पांचवे पे हारून, छठे पे मूसा, सातवें पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पहले आसमान में पहुंचे, आदम अलैहिस्सलाम से मिले। आदम अलैहिस्सलाम, एक हदीस में आता है कि वेलकम किया, एक हदीस में आता है कि आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास गए। मरहबा ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेलकम ओ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले पे आदम, दूसरे पे याहया, ईसा, जकरिया, तीसरे पे यूसुफ, चौथे पे इदरीस, पांचवे पे हारून, छठे पे मूसा, सातवें पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुद चल के जाते हैं और फरमाते हैं कि ए दादा जान, आपका पोता आया है, कि उम्मत को दिखाना था कि दादा के पास पोता चल के जाएगा, पोते के पास दादा चल के नहीं आएंगे। कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हैं? आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। पहले पे आदम, दूसरे पे यहया, ईसा, जकरिया, तीसरे पे यूसुफ, चौथे पे इदरीस, पांचवे पे हारून, छठे पे मूसा, सातवें पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे वेलकम करने के बाद एक दरख्त दिखाया जाता है। उस दरख्त का नाम था सिदरतुल मुंतहा का दरख्त। उस सिदरतुल मुंतहा के जो ट्री के आपके पास जो ट्री के लीव्स थे, ट्री के लीव्स जो थे वो बिल्कुल ईयर ऑफ एलिफेंट की तरह थे। इतने बड़े बड़े आपके पास जो थे वो ईयर ऑफ एलिफेंट की तरह उसके बिल्कुल आपके पास जो है, उसके बिल्कुल आपके पास जो है वो हाथी के कान की तरह जो है वो उसके पत्ते थे। और एक और मामला था, हाथी के कान के अलावा सर उसके ट्री के बाद जो उसके फ्रूट्स थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे कि भाई किले की क्या हो, किले की जग्स हो। सिदरतुल मुंतहा दिखाने के बाद अल्लाह ताला का घर दिखाया जाता है जिसका नाम था बैतुल मामूर। इस सिदरतुल मुंतहा के दरख्त से मेरे बच्चे कितने रिवर निकल रहे हैं? 4 रिवर निकल रहे हैं, जिसमें 2 हिडन हैं, 2 शोन हैं। जो शोन है वो रिवर ऑफ नाइल और रिवर ऑफ योफ्रेट है। रिवर ऑफ नाइल और रिवर ऑफ योफ्रेट। बाकी जो 2 रिवर हैं वो जन्नत में जा रहे हैं। सिदरतुल मुंतहा की शाख से 4 रिवर निकलने ही हैं। 2 हिडन है, 2 शोन है। जो 2 शोन है वो रिवर ऑफ नाइल है, रिवर ऑफ योफ्रेट है। इसके बाद मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का घर दिखाया जाता है जिसका नाम था बैतुल मामूर। बैतुल मामूर जहाँ पे मेरे बच्चे, ये अल्लाह का घर का नाम है जहाँ 70,000 एंजल्स अल्लाह की इबादत करते हैं और रोज नया एंजल आता है। रोज नए एंजल्स आते हैं, दोबारा पुराने एंजल्स रिपीट नहीं किए जाते। बैतुल मामूर अल्लाह ताला का घर है जहाँ 70,000 एंजल्स अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वो 70,000 एंजल्स अल्लाह की इबादत करते हैं, पुराना एंजल दोबारा नया रिपीट नहीं होता। जिब्राइल कहते हैं मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मैं इसके आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्स्ट्रा पावर दी गई। अब सर, अब वो रास्ता आने वाला है, अब कम्युनिकेशन होने वाली है। ये वो अल्लाह है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सालों से सुन रहे हैं। ये वो अल्लाह है जो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासे देगा, आका से मोहब्बत करेगा, आका से इश्क करेगा, आका से मुलाकात करेगा। मुलाकात करने के लिए आका को मेराज पे बुलाया गया है। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए हैं। जब पहले आसमान पे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे थे तो जब दरवाजे पे जिब्राइल ने दस्तक दी थी, एंजल ने दरवाजा खोलने से पहले पूछा था कि ये कौन है आपके साथ, तो बताया था
के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहानों के बादशाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जन्नत में कोई जा नहीं सकता जब तक मेरा आका ना जाए। सर अब ये कम्युनिकेशन होने जा रही है किसके साथ? अल्लाह के साथ। जब अल्लाह से कम्युनिकेशन करने के लिए डायरेक्टली आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला 50 नमाजें आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ तोहफा देता है, और उसमें से कुछ बातें अल्लाह के साथ होती हैं। तो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह, आपने मूसा को ये पावर दी कि वो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट किया करते थे। आपने ईसा अलैहि सलाम से को ये पावर दी कि वो मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। आपने इब्राहिम अलैहि सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया। ए अल्लाह, मेरे लिए क्या है? तो मेरा अल्लाह अपने हबीब से कहता है, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और आपका नाम ता कयामत जुड़ गया, मेरा और आपका नाम ता कयामत एक रहेगा। कोई इंसान मुझसे और आपसे इश्क करना चाहे वो कर नहीं सकता जब तक वो पढ़ ना ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कन्वर्जेशन हो रही है, ये कन्वर्जेशन अल्लाह के साथ हो रही है। 50 नमाजें लेके खुशी खुशी पहुंच रहे हैं। छठे आसमान पे थे मूसा अलैहि सलाम, 6 हेवन पे पहुंचते हैं। मूसा अलैहि सलाम कहते हैं, ए मोहम्मद क्या मिला? तो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं 50 नमाजें मिली। मूसा कहते हैं 50? अरे उम्मत कैसे पढ़ेगी 50 नमाजें? ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। गए, 5 कम हो गई, फिर गए, फिर 5 कम हो गई, फिर गए, फिर 5 कम हो गई, फिर गए, फिर 5 कम हो गई। एट लास्ट 45 नमाजें कम कर दी गई, एट लास्ट 5 रह गई। कहा जाता है अल्लाह ने 5 ही देनी थी। बार बार हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए बुलाया जा रहा था कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार मुलाकात करना चाहता था। क्या मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया गया, क्या अजीम शान हस्ती बनाई गई, कितना हसीन और जमील बनाया गया। 5 नमाजें लेके मूसा ने फिर कहा उम्मत नहीं पड़ेगी। तो मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब मुझे शर्म आती है, मैं अपने रब से इतनी बार कह चुका हूँ, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव आस्क माई लॉर्ड, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव आस्क माई लॉर्ड, बोलो बेटा, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव आस्क माई लॉर्ड टिल आई एम ashamed टू फेस हिम, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव आस्क माई लॉर्ड टिल आई एम ashamed टू फेस हिम, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव आस्क माई लॉर्ड टिल आई एम ashamed टू फेस हिम, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव आस्क्ड माय लॉर्ड टिल आई एम ashamed टू फेस हिम। मैं अपने रब से इतनी बार कह चुका हूँ, अब मुझे शर्म आती है। मूसा ने कहा था मेरी उम्मत को 2 मिली थी। मूसा अलैहि सलाम की उम्मत कौन है? मूसा अलैहि सलाम की उम्मत यहूदी हैं, ज्यूज हैं। मेरी उम्मत को 2 मिली थी, उन्होंने नहीं पढ़ी थी। अरे ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 कैसे पढ़ लेगी? तो मेरे आका क्या कहते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जिसने नमाज को छोड़ा वो ऐसे ही है, वो नॉन बिलीवर हो जाएगा। नमाज में और एक 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 उम्मती में और एक नॉन मुस्लिम में सिर्फ किस चीज का फर्क है? नमाज का फर्क है। ये इश्क है, ये मामला है। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बाद जन्नत दिखाई गई। जन्नत के गेट कीपर का नाम है रिजवान। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई, जन्नत दिखाई गई, एक बार सुबहान अल्लाह आप पढ़ेंगे ना, तो जन्नत में आपका इतना बड़ा महल लगेगा कि अरबी घोड़ा उसका चक्कर लगाता रहे तो वो चक्कर पूरा ना पड़े। अल्लाह ने इतना बड़ा मामला रखा, उम्मत को तोहफा दिया अस्तगफिरुल्लाह का, सुबहान अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह का, अल्लाह अकबर को। ये जन्नत से आपको करीब कर देगी। सर जन्नत के गेट कीपर का नाम है रिजवान। रिजवान को कहा गया दरवाजे खोलिए। जहन्नुम के गेट कीपर का नाम है मालिक। जहन्नुम के लोग दिखाए गए, जहन्नुम के लोग दिखाए गए कि एक शख्स है, वो गोश्त की उल्टियां कर रहा है। वो गोश्त की उल्टियां कर रहा है, वो उसके मुंह से उल्टियां हो रही हैं, वो उल्टियां कर रहा है, वो उल्टियां निकाल रहा है। तो मेरे आका पूछते हैं जिब्राइल ये क्यों हो रहा है? तो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये एक दूसरे की गीबत किया करते थे। जब वो दूसरा प्रेजेंट नहीं होता था तो उसके बारे में बात किया करते थे। तो ये अब दूसरे इंसान के वो ऐसा ही है कि गीबत किया आपने, दूसरे किसी का गोश्त खा लिया, गोश्त नोच लिया, तो ये उल्टियां कर रहे हैं। ये मेरा अल्लाह है। एक शख्स आग खा रहा है, वो आग खा रहा है तो भाई ये झूठ बोलता था, ये दुनिया के अंदर मामलात इसके खराब थे। ये जन्नत दोजख दिखाने के बाद आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिटर्न ली।
रिटर्न लेने के बाद रास्ते में एक चुड़ैल बुला रही थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो कौन थी? वो शैतान थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आप उसको आंसर ना करें, अगर आपने उसको आंसर कर दिया आपकी उम्मत वर्ल्डली लग्जरीज में पड़ जाती। आप उसको आंसर ना करें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं। लास्ट में आप डालेंगे कंक्लूजन। क्या डालेंगे मेरे बच्चे? कंक्लूजन। लास्ट में आप डालेंगे कंक्लूजन। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज रिटर्न्ड, मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, कुरैश को बताया तो कुरैश ने हंसना स्टार्ट कर दिया। कुरैश ने मॉक करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने मेरे आका पे बिलीव, बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसकी वजह से उनको टाइटल मिला सिद्दीक का। उनको टाइटल मिला सिद्दीक का, द वन हु सपोर्ट द ट्रुथ, सिद्दीक जो सच का साथ देने वाला है। अबू बकर ने मेरे आका पे बिलीव किया। अबू बकर को टाइटल मिला सिद्दीक का। उसके बाद मक्का वालों ने डिफरेंट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए। किसके बारे में? मस्जिद अल अक्सा के बारे में, जिसको फर्देस मॉस बोलते हैं। मस्जिद अल अक्सा के बारे में, मस्जिद अल अक्सा के बारे में सवालात पूछे। मस्जिद अल अक्सा के बारे में सवालात पूछने के बाद, मस्जिद अल अक्सा के बारे में सवालात पूछने के बाद आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह एक स्क्रीन चलाता है, और उस स्क्रीन में अल्लाह ताला जो है वो मस्जिद अल अक्सा पूरी दिखाता है। तो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि क्या 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 कहाँ पे था, कैसे क्या था, क्या चीज कहाँ थी, क्या चीज कैसे थी, क्या चीज क्या मामला था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बट इफ दे सी अ साइन दे टर्न अवे, बट दे सेड दिस इज कंटिन्यूस मैजिक। आप अभी ये आंसर अपने रजिस्टर से छापेंगे, आप अभी आपके पास जो है वो आंसर कॉपी करेंगे। आप जब ये आंसर कॉपी करेंगे, इरिश्वा बाजी को आप जो है वो ये काम भेजेंगे।